اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ستائش، کبریائی، بزرگی، برتری، بڑائی اور تعریفات کے معلیٰ کلمات اسی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لم یزل کے لیے مختص ہیں، جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ جمعہ کے مبارک دن، خطبہ جمعہ کے مبارک وقت میں خطبہ جمعۃ المبارک کی سماعت جیسی عظیم عبادت کہ جس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہم سے پہلے مساجد کے دروازے پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جس مختصر عبادت کا اجر و ثواب اتنا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ والے دن مسنون غسل کر کے صاف ستھرا لباس زیب تن کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اگر خطبہ سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو جس قدر استطاعت توفیق ہے نوافل ادا کرے، اگر خطیب کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو 2 رکعت ادا کر کے اپنے مقام پہ بیٹھ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مختصر عبادت کے بدلے میں اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق اور یہ سعادت بخشی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرما کے
دنیا اور آخرت میں عزت، آبرو اور نجات اور بخشش کا سبب فرما دے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، مربی کائنات، محسن امت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کا دین من وعن ہم تلک پہنچایا، جس کے نتیجے میں بحمد اللہ تعالی آج ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ جس طرح اپنی خاص مہربانی سے ہمیں اس عظیم ہستی کا امتی ہونے کا شرف بخش چکے، اللہ سبحانہ وتعالی من حیث الامت صحیح معنوں میں ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن ہمیں حوض کوثر جو ایک ماہ کی مسافت جتنا لمبا ہوگا، حوض کوثر کے اس کنارے پہ اسی طرح جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے جس کنارے پہ رسول کائنات اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اپنے محبوب علیہ السلام کے قدمین مبارکین میں ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ نصیب فرما دیں۔ حضرات، خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا اللہ کی توصیف کے کلمات کے دوران کہ 8 دن کے بعد ملنے والا یہ گولڈن چانس، یہ موقع، اگر ہم اس کو شرعی اصولوں کے عین مطابق بسر کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف ہمارے دلوں پہ نور اور سکینت کا نزول فرماتے ہیں بلکہ 10 دن کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی اور ہم اللہ کے اس عظیم الشان گھر جامع مسجد بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کی توفیق سے آج حاضر ہو گئے۔ حضرات ذی القدر، دنیا کی زندگی کے جن لمحات کو میں اور آپ گزار رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے تخلیقی مقصد کا پاسبان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں زندگی گزار دیتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عبادت کا عمل دخل نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں، تو پھر حضرات زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح مٹنے کے قریب ہے۔ یہ ہمیں گزار دے گی قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہوں۔ ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان کے اپنے شب و روز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور احکامات کی تعمیل میں گزارنے ہوں گے۔ میں نے خطبہ کے اندر سورہ یاسین کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ حضرات کے پیش خدمت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دنیا کی اس زندگی اور اس کی حقیقت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے مقاصد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آنے والا اور اس دنیا میں آ کے اپنے شب و روز بتا کے موت کے راستے سے واپس اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے والا، سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فلسفہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए तरतीब फरमाई ताकि हम मालूम कर सके तुम में से दुनिया की जिंदगी के अंदर नेक आमाल का जखीरा लेके कौन हमारी बारगाह में वापस पलटता है। अब वापस आइए सूरह यासीन की उस आया मुबारका की तरफ जो इंशाअल्लाहुर रहमान आज हम अपने खुतबा जुमा का मरकजी उन्वान तरतीब दे रहे हैं। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं हम मुर्दों को दोबारा जिंदा फरमा देंगे, हम मुर्दों को दोबारा जिंदा और इसी सूरह यासीन के अंदर खुदा रहा सूरह यासीन की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाइए। मैंने एक हदीस मुबारका में पढ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया करते थे कि मेरा जी चाहता है मेरी उम्मत का हर फर्दो बशर सूरह यासीन को जुबानी याद कर ले। ये हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मासूम सी ख्वाहिश है। अल्लाह करे हम इस ख्वाहिश का एहतराम कर सके। इसी सूरह यासीन में आखिरी मुकामात पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। जब क़यामत का ज़लज़ला बपा होगा और असल के अंदर उस अजराम फल्की के एक्सीडेंट को क़यामत कहा जाता है, उस वक्त जबकि ज़मीन फट जाएगी और कब्रें खोल दी जाएंगी और लोगों को कब्रों से निकाल के अल्लाह की तरफ चलाया जाएगा। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। फिर सवाल करेंगे हमें हमारी आराम गाहों से किसने उठा दिया। दुआ करें कब्र या जन्नत के बागात में से एक आरामदेह बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। दुआ किया करें अल्लाह हमारे इस्लाफ असातिज़ा वालिदैन मुहद्दिसीन हमारी और हमारी औलादों अहलो अयाल और हमारी आने वाली नस्लों की कब्रों को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह फरमा दें। अल्लाह फरमाते हैं ये कहेंगे हमारे आराम गाहों से किसने उठा दिया। उसका जिक्र सूरह यासीन के शुरू में है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश किए जाएंगे ये जो जिंदगी हम 60 70 80 साल की बिता के या अपने से पहली उमम की तरफ अगर देखें तो कोई 900 साल की जिंदगी गुजारता है, कोई 500 साल की जिंदगी गुजारता है, लेकिन दुनिया से जाते हुए खाली हाथ जाता है। यहाँ तो सिकंदर बादशाह जैसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत का शर्फ हासिल किया, सिकंदर बादशाह अपने वसीयत नामे में लिख के जा रहे हैं मैं जब मर जाऊं मुझे कफन दे दिया जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना ताकि मेरा जनाजा पढ़ने वालों को मालूम हो जाए कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला भी आज लोगों खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। कफन की 3 चादरों के सिवा कुछ भी दुनिया से कमा के नहीं ले जा रहा। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। तैयारी कीजिए ठिकाना तेरा गोर है, कुछ तो कर ए राकिब। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना अच्छा नहीं होता। अपना ज़ादे राह तैयार कीजिए, अपने सफर के अखराजात का इंतजाम कीजिए। खुदा रा अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। हम मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। जो लोग आगे भेजते हैं हम वो भी लिख रहे हैं, जो लोग अपने आसार छोड़ के जाते हैं हम वो भी लिख रहे हैं। इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। मैं आप हज़रात की तवज्जो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ इस तरफ मबज़ूल करवाने की जसारत कर रहा हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। जो आगे भेज रहे हो और जो पीछे छोड़ के जाओगे वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला लिख रहे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। वो सारे का सारा हमारे पास एक दफ्तर में, एक रजिस्टर में, एक नविश्ते में लिखा है। तुम्हारी जिंदगी के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं और क़यामत वाले दिन तुम्हारे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तनाजुर के अंदर तुम्हारी जन्नत या तुम्हारी दोज़ख का फैसला कर दिया जाएगा। हम लिख रहे हैं। अब मैं अपने गिरेबान में झांकूं, हम सब अपना अपना एहतिसाब करें। हम अपने कल के लिए
क्या तैयारी कर रहे हैं, हम अपने कल के लिए क्या फिक्र पैदा कर रहे हैं, हम अपने कल के लिए क्या, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए हर इंसान परेशान होता है, लेकिन वो जो असल फ्यूचर, वो असल जो हमारी आरामगाह और कल वो जो हमारी आखिरी मंजिल होगी, कभी सोचा कि उसके लिए मैंने और आपने आगे क्या भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नुफूस कुदसियात पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो सहाबी दुनिया में जिस जिस मुकाम पे मदफून हैं, अल्लाह उनके कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अब्र रहमत का नुज़ूल फरमा दे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला बीमार हो जाते हैं, हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। तो जाके जब उनके घर का नक्शा देखा तो देखा कि दाएं बाएं हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सहाबा के देखने के अंदाज को भांपते हुए बीमार अबू दरदा सवाल करते हैं, ऐ मेरे साथियों क्या ढूंढ रहे हो? तो हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, अबू दरदा आपके मकान में, आपके घर में रहने सहने का कोई सामान नज़र नहीं आ रहा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारा एक और मकान है, तवज्जो, हमारा एक और मकान है, हमारा एक और घर है, हम अपना सामान वहां पे भेज रहे हैं, हमारा एक और मकान है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सहाबा किराम समझ गए, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, अबू दरदा किस मकान की बात कर रहे हैं, किस घर की बात कर रहे हैं? हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, अबू दरदा वो आपकी बात तो ठीक, लेकिन दुनिया में रहने के लिए भी तो कोई साजो सामा चाहिए, यहाँ रहने के लिए भी तो कोई इंतजाम चाहिए। तो सैयदना अबू दरदा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैं दुनिया के इस किराए वाले मकान का सामान कैसे बनाऊं, मुझे घर का मालिक इजाजत नहीं देता, मैं सामान बनाने में मसरूफ हूं और वो मुझसे मकान खाली करवा ले। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का हो पल की खबर नहीं। जिंदगी गुजर जाती है मकान बनाते हुए, कमेटियां डालते हुए, बचत करते हुए, जोड़ जोड़ के रखते हुए, लेकिन बीसियों बल्कि सैकड़ों वाकयात ऐसे आपके इल्म में भी हैं, हमने भी अपनी आंखों से मुशाहदा किया है। घर का लेंटर पड़ रहा होता है तो मालूम होता है अभी घर बनाया नसीब नहीं हुआ देखना, और जिस दिन घर का लेंटर तैयार हो रहा था उस दिन साहिब खाना का जनाजा भी निकल रहा था। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का हो पल की खबर नहीं। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं दुनिया के इस आर्जी मकान के लिए समा कैसे इकट्ठा करूं, मुझे घर का मालिक इजाजत नहीं देता। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, लोगों आज अपना अपना मवाजना हम करें, हम अपने कल के लिए क्या बेच रहे हैं और हम अपने पीछे आसार क्या छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने कल के लिए क्या फ़िक्र कर रहे हैं। और कल की फ़िक्र करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे मोहसिन और मुशफ़िक़ व मुरब्बी हैं, उन्होंने मेरी और आपकी तरबियत कैसे फरमाई। यहाँ तो आलिम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह के अंदर क़याम फरमाया करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क़याम फरमाते कि ये कदमैन मुबारकैन मुतवर्रम हो जाते, पाँव मुबारक सूज जाते, और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहब्बत के साथ जब पाँव को छू के मेरे पैगम्बर की तकलीफ़ का एहसास करती तो अर्ज़ किया करती अदब एहतराम के साथ, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज अल्लाह ने तो जन्नत आपके नाम लिख दी, तो फिर इस कदर अपने आप को मुशक्क़त में क्यों डालते हैं। तो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था कि अगर अल्लाह ने मेरे
ऊपर इतनी नेमतें की, तो क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? आज मवासना कीजिए, दूर न जाइए। ये जो अल्लाह ने हमें ये फ़ानी और खाकी वजूद मुरहमत फरमाया है, अपने सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तलक, आप देखिए कि अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें बिन मांगे नसीब फरमा दी। अल्लाह ने ये देखती हुई आंखें, ये सुनते हुए कान, और अल्लाह ने ये हरकत करते हुए हाथ और पाँव, और ये सोचने के लिए दिमाग और धड़कने के लिए जो दिल हमें नसीब फरमाया है। क्या इसके तनाजुर में कभी अपना अपना एहतिसाब हमने किया कि हमने अल्लाह की इन नेमतों का कितना शुक्र अदा किया? मैंने रोजाना कुरान पाक के कितने पारों की तिलावत की, मैंने किस कदर नवाफिल का एहतमाम किया, और दिन के रात के 24 घंटों के किसी एक लम्हे में इन नेमतों को याद करके मेरी जुबान से कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। वनक्तुबु मा क़द्दमू, ये लिखा जा रहा है भाइयों, जो अपने कल के लिए आगे भेजेंगे वो तहरीर हो रहा है, ज़ब्ते तहरीर में आ रहा है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, ये अल्लाह ने जो मुझे और आपको नेमतें नसीब फरमाई हैं। लाहौर के एक डॉक्टर साहब कहने लगे, वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, कहने लगे मेरे पास एक बुजुर्ग आए, हाजी साहब आए, जब उनकी एंजियोग्राफी की गई तो कहा कि आपके दिल के कुछ वाल चेंज करने होंगे, उसके लिए तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो वो बुजुर्ग ज़ारो के तार रोना शुरू हो गए। वो मुहतरम डॉक्टर साहब कहते हैं मैं समझा कि शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा मैं उसमें कोई कंसेक्शन कर देता हूँ। तो वो बुजुर्ग कहने लगे डॉक्टर साहब अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं कई लाख अदा कर सकता हूँ। आज रोया तो इसलिए हूँ कि जिस मालिक ने सारी ज़िंदगी इस दिल को मुफ्त में धड़कना नसीब फरमाया था, मैंने उसका कितना शुक्र अदा किया। आज इस दिल की बैटरी को रवा रखने के लिए, चार्ज रखने के लिए मुझे लाखों रुपए की ज़रूरत है, और जिस मालिक ने मुझसे किसी चीज़ का मुतालबा और तकाजा नहीं किया, मैंने अपने उस परवरदिगार का आज तक कितना शुक्र अदा किया। ये चीज़ें भाइयों लिखी जा रही हैं खुदा के लिए। अपना रोज़मर्रा एहतिसाब कीजिए। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जो अपने कल के लिए भेजेंगे वो भी लिखा जा रहा है, जो अपने पीछे छोड़ के जाएंगे वो भी लिखा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते। कुरान पाक की तालीम को, कुरान पाक की तिलावत को, कुरानी अहकामात पे अमल पैरा होने को इस कदर इस्लाम में तरजीह दी गई। किस लिए? कि हम अपने कल के लिए तैयारी कर लें। व आसारहुम, जो पीछे छोड़ के जाएंगे। अब पीछे छोड़ के जाने वालों में सबसे ज़्यादा इंसान का पहले नंबर पे अपना ज़ाती अमल। अल्लाह हमें बाअमल ज़िंदगी नसीब फरमा दे। हकीकत बात है, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको अल्लाह के तकाज़ों के मुताबिक बिता लो। आखिरत के मुकाबले में इस ज़िंदगी की हैसियत फ़कत इतनी है कि जब अपनी ज़िंदगी के 60, 70, 80 बरस गुजार के, 100 साल, 900 साल गुजार के अल्लाह की बारगाह में हम पेश होंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुम दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजार के आए वो किस कदर थी। तो क्या कहेंगे? 30वें पारे में इरशाद रब्बुल आलमीन है, लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजार के आए हैं। जब आखिरत के मुकाबले में हमारी सारी ज़िंदगी की हैसियत इतनी, तो फिर हजरात आज के खुतबा जुमा का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को अपने रब के तकाज़ों के मुताबिक बना लें। दुनिया में अपने अल्लाह की मान लें, आखिरत में अल्लाह आपकी सभी मान लेंगे। दुनिया में अपने अल्लाह के अहकामात का खुद को पाबंद फरमा लें। इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह फरमाते हैं जो पीछे छोड़ के जाए नेक अमल, हम उसको भी लिख रहे हैं, हम उसका भी हिसाब रख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे आसार छोड़ के जाएं, इसलिए ऐसी यादें छोड़ के जाएं। हज़रत सहाबाए किराम और आइमाए किराम और मुहद्दिसीन, अल्लाह उन सब पे राज़ी हों, आज मिंबर व महराब से जब उनका ज़िक्र आता है तो उम्मत मुसलमा की
निगाहें अदब व एहतराम से क्यों झुक जाती हैं? कभी सोचा आपने? उन्होंने आसार ऐसे छोड़े कि अपनी ज़िंदगी को अपने रब के लिए बना लिया। मन कान लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए बन जाए, कान अल्लाहु लहू, अल्लाह उसका बन जाते हैं। अल्लाह उसके साथ शफकत फरमा के उसका अच्छा जिक्र छोड़ जाते हैं। तो अपना जिक्र अच्छा, अपने आसार अच्छे छोड़ के जाइए, अपनी यादें अच्छी छोड़ के जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी यादें ऐसी छोड़ के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो तमाम मामलात से बिल्कुल मुनक़ते हो जाता है। जब मेरी और आपकी मौत वाक़ई होती है तो दुनिया के मामलात से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पीछे आसार छोड़ के जाए। 3 चीज़ें ऐसी हैं। नंबर 1, इंसान का ज़ाती अमल, अल्लाह हमें बाअमल ज़िंदगी नसीब फरमा दे। खुतबा जुमा की साअतों में एक लम्हा, एक घड़ी ऐसी भी आती है कि जो कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह करे ये जिस लम्हे में हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इसको कबूलियत वाला बना दे। अल्लाह हम सबको अमल वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे और हमारी पहचान नेक अमल हो, ताकि कल को जब मेरा और आपका जनाजा उठे तो हमारे जनाजे की पहली सफ़ों में कम से कम बारिश लोग हों, मुतशर्रा लोग हों, कुरान और सुन्नत के पाबंद लोग हों, मस्जिद के नमाजी हमारी पहली सफ़ों में खड़े हों। जब हमारा जनाजा पढ़ा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान दुनिया से जाता है तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय इसके कि जो नेक अमल करके जाए। उस अमल का सदका जारिया अल्लाह उसको कब्र में भी नसीब फरमाते हैं, आखिरत में भी नसीब फरमाते हैं। और जब तक वो अमल जारी रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए अजर व सवाब का सबब फरमाते रहेंगे। दूसरे नंबर पे अपने आसार छोड़े जाने वालों में नेक औलाद। दुआ करते हैं कि जो नरीना औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ज़िंदगी वाले नेक बेटे नसीब फरमा दें। हम में से जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह हमारी औलादों को नेक और फरमा बरदार फरमा दे, हमारी आंखों की ठंडक फरमा दे। कुछ लोग औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा दुखी और हसास होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके दुखों को मिटा के उनकी औलादों को किरदार इस्माईल अलैहिस्सलाम नसीब फरमा दे। फरमाया नेक औलाद। जब नेक औलाद दुनिया से छोड़ के जाए तो वो उसके लिए सदका जारिया बन जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के असातिज़ा के अंदर इमाम रबिया रहमहुल्लाह का एक नाम बड़ा जली हुरूफ में नजर आता है तारीख़ मुहद्दिसीन के अंदर। ये मदीने के नौजवान थे इमाम रबिया रहमहुल्लाह ताला। इनके वालिद मुहतरम, उनका नाम अब्दुर्रहमान था और वो इस्लामी फौज के सिपाही थे। एक वक्त ऐसा आया कि अब्दुर्रहमान को इस्लामी मुहाज के लिए जंग पे जाना पड़ा। अब घर में अल्लाह की रहमत होने वाली है तो अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ थमा के तो कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, ये रकम मैं इसलिए मुख्तस करके जा रहा हूँ, ये मेरे उस बच्चे की तरबियत पे सर्फ करना। अल्लाह अकबर। कब अब वो अब्दुर्रहमान चले जाते हैं। अल्लाह ने इनके घर चांद जैसा बेटा पैदा फरमाया। माँ ने उसका नाम रबिया रहमहुल्लाह रख दिया। फिर उसकी तरबियत इस्लामी खतूत पे की। आज एक अलमिया ये भी है कि आज मुसलमानों के जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ बुलंद होती थी, आज अलमिया ये है, अफसोस ये है कि घर के जितने अफराद हैं उतने हमारे घरों में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हैं। और ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ने हमें इबादत और ज़िक्र फ़िक्र से इतना बेगाना कर दिया है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कभी आप भी देखिएगा कि नमाज की सलाम फेरते जिन जिन की जेब में एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, ज़िक्र अज़कार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाद में याद, सबसे पहले यूं करके हमारा जेब में हाथ जाता है। हमें ये फ़िक्र होता है
کہ یہ جو 5-7 منٹ میں اپنے موبائل سے دور رہا ہوں کوئی میسج نہ آیا ہو، تو جو میسج اللہ کی طرف سے کنوے کیا گیا کبھی اس کو بھی دیکھا؟ میں تو بلکہ چودھری صاحب اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنا اگر احتساب اس تناظر میں کریں کہ آج ہم سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس جو استعمال کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کسی کا واٹس ایپ چیک کر لیں، لاسٹ سین کتنا ہوگا 5 منٹ اگو، کسی کا فیس بک چیک کر لیں، انسٹا چیک کر لیں، ٹویٹر چیک کر لیں، کیا ہوگا جی ابھی چند منٹ پہلے دیکھا ہے۔ تو کبھی یہ قرآن مجید جو اللہ کا میسج بن کے آیا تھا، کبھی اس کا لاسٹ سین بھی چیک کیا ہے کہ آخری مرتبہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کب کی تھی؟ اپنا موازنہ کیجیے اللہ کے لیے۔ تو تربیت کا پہلو یہاں سے بگڑا کہ جب ہم نے اپنے گھروں کے اندر جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے موبائل فونز ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور اس موبائل فون نے ایک گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے سینکڑوں میلوں کی مسافت دنوں میں پیدا کر دی ہے۔ ماں نے تربیت کی، قرآن پاک پڑھایا، سبحان اللہ، ماں نے تربیت کی، احادیث کی تعلیم دلوائی، قرآن کا حفظ کروایا۔ اب عمر 18 سال سے زائد نہیں اور اللہ نے مسجد نبوی کے مصلی کا امام بنا دیا ہے۔ 18 برس بیت گئے۔ ان کے والد گرامی وہ جو عبد الرحمن تھے وہ محاذ طے کرتے کرتے 18 برس زندگی کے بیت گئے، تو ایک دن واپس اپنے گھر میں آئے تو عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ جب گھر میں پہنچے بیوی سے ملے تو مختلف تبادلہ خیال کے بعد کہنے لگے وہ میں چلتے ہوئے تمہیں 30,000 شرفیاں دے کے گیا تھا، ان کا کیا بنا؟ اسی اثناء میں مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدا گونج جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ پہلے جا کے نماز ادا کر لیں، یہ بات پھر بعد میں کریں گے۔ اب یہ عبد الرحمن مسجد نبوی میں آتے ہیں تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک نوجوان، خوب رو نوجوان، چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد حدیث کا درس شروع ہو جاتا ہے اور لوگ دیوانہ ور نظروں سے منتظر ان کا دیدار کر رہے ہیں، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں سماعت فرما رہے ہیں۔ عبد الرحمن وہاں بیٹھے بیٹھے دل میں سوچتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا یہ بیٹا ہے۔ اپنے ساتھ والے کو کہتے ہیں یہ امام صاحب کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی عبد الرحمن تھا، یہ ان کے بیٹے ربیہ ہیں، اور اللہ نے اتنی عزت اور اتنا اخلاص ان کو دیا ہے کہ آج نہ صرف یہ مسجد نبوی کے مصلی کے وارث ہیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے لوگ آج ان کے حلقہ تلامذہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے اپنے زانوں میں تلمس طے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بھی سمجھ نہیں آئی، گھر میں واپس آئے، اپنی بیوی محترمہ کو وہ مسجد نبوی کا جو چلنے والا درس تھا پہلے اس کی بابت اظہار کرتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے اور ماں ہے جس کا بیٹا اس امام جیسا ہے کہ جس کے سامنے ہزاروں لوگ اپنے گھٹنوں کو ٹیکے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ وہ جہاں سے بات کٹی تھی وہیں سے آ کے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں، میں چلتے ہوئے تمہیں 30,000 شرفیاں دے کے گیا تھا۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسے آثار دنیا میں چھوڑ کے جائیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اپنے آثار ایسے چھوڑ کے جائیں، اپنے کل کے لیے ایسی تیاری کر کے جائیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی وہ مسجد نبوی کے جس امام کی توصیف اور تعریف کرتے ہوئے آپ کی زبان تھک نہیں رہی، عبد الرحمن وہ کوئی غیر نہیں، وہ ہمارا بیٹا ربیہ ہے جسے اللہ نے وقت کا امام بنا دیا ہے۔ اپنے آثار ایسے چھوڑ کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے
नेक औलाद छोड़ के जाओ, वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाती है। कभी आपने सोचा अपने बच्चों को, अपनी औलादों को मसाजिद में अपने साथ लेके आया करें अल्लाह के लिए। ये देखें, ये अल्लाह के अजीम शान घर, ये इस्लाम के कले हैं, ये हमारी तरबियत गाहें हैं, यहाँ अपने बच्चों को लेके आया करें। कभी सोचें आप कि कल को जब मैं और आप कब्र में पड़े होंगे और हमारी औलाद मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगी, और जब हमारी औलाद तशहुद में बैठ के कहेगी रब्बे ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी मुआफ़ फरमा दे, मेरे अम्मी अब्बू को भी मुआफ़ फरमा दे। आप सोचें, ऑब्ज़र्व करें कि उस वक्त कब्र के अंदर इंसान के ऊपर रब की कितनी रहमतें बरसेंगी, कितने अल्लाह के फजल व इनायात बरसेंगे। बल्कि सुनन इब्ने माजा की किताबुल अदब के अंदर एक रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है। तो वो सवाल करता है, जब उसका स्टेटस बुलंद होगा वो कितना खुश नसीब होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, वो सवाल करता है, अल्लाह दारुल अमल दुनिया से तो मैं आ चुका, अब यहाँ नेकी तो कोई करता नहीं, तो ये मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, दुनिया में नेक औलाद छोड़ के आया था। आज तेरे बच्चे ने, तेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह मेरे अब्बू को माफ़ कर दे। हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे बिलखुसूस उनके लिए दुआ का एहतिमाम किया करें। अपनी दुआओं में अपने उन बूढ़े वालिदैन को याद रखा करें जिन्होंने अपना मादी हाल और मुस्तकबिल मेरी और आपकी तरबियत के ऊपर सरफ कर दिया, मेरा और आपका फ्यूचर बनाने में सरफ कर दिया। आज अगर कब्रों में पड़े हुए हैं तो सोचिए कितने बरस बीत गए, कितने महीने गुजर गए, कितने हफ्ते गुजर गए, कभी अब्बू जान के कब्र पे जाके खड़े होकर दुआ करनी नसीब नहीं हुई, कभी अम्मी जान के कब्र पे जाके दुआ मांगनी नसीब नहीं हुई। तो जब इंसान दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे अब्बू को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी अम्मी को माफ़ कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जन्नत में उस आदमी के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जो आगे भेज रहे हो हमने वो भी लिख लिया, जो पीछे छोड़ के जाओगे हम वो भी लिख रहे हैं। तो पीछे छोड़ने वाले आमाल में से इंसान का अपना नेक अमल, दूसरे नंबर पे इंसान की औलाद, और तीसरे नंबर पे वो नाफे का इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो। खुतबा जुमा में अगर कोई मसला आप सुनते हैं, वो आगे जाके कम अज़ कम अपने घर वालों को बिठा के सुना दिया करें। बाहर से अगर अब कभी आप कोई हदीस मुबारका सुनते हैं तो कम अज़ कम अपने घर वालों को जाके वो हदीस मुबारका सुना दिया करें। अपने कलीग हजरात जो हैं, अपनी फैक्ट्री दुकानदार हजरात जो हैं, अपने दोस्त अहबाब रुफ़ाक़ा जो हैं, कम अज़ कम उनको जाके अल्लाह का पैगाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और सुन्नत उसके मुताबिक आगाह कर दिया करें। अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो गया, अब यकीन कीजिए ये मेरे और आपके लिए ऐसे रोशन आसार बन जाएंगे कि हम दुनिया से चले जाएंगे। अगर मेरी और आपकी दावत पे कोई कुरान पाक की तालीम को शुरू कर दे, कोई नमाज पंजगाना की पाबंदी को शुरू कर दे, जब तलक वो नमाज पढ़ता रहेगा, हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस तरगीब देने वाले को भी उतना ही अजर व सवाब मुरहमत फरमाएंगे। इसलिए अपने आसार को ऐसा छोड़ के जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, जो अपने पीछे छोड़ के जाओगे वो सभी कुछ हम एक नविश्ते में लिख रहे हैं, एक किताब में लिख रहे हैं, एक रजिस्टर में लिख रहे हैं। क़यामत वाले दिन वो तुम्हारा नविश्ता, तुम्हारा रजिस्टर और तुम्हारा नामा आमाल तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो। अहले इलाका के लिए, बल्कि ये वैसे दौरान गुफ्तगू बात आ गई ज़िमनन, तो मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, आप सब हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने इतना अजीम शान अपना घर आप लोगों को नसीब फरमा दिया है। जिन जिन लोगों ने इसके लिए मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह उनकी जुहूद कामिला को भी कबूल फरमा ले। लेकिन असल ज़िम्मेदारी अब भाइयों आपकी शुरू हो रही है। इस घर को आबाद करें, अपने बच्चों को कुरान
कुरान की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, क़यामत वाले दिन तुमसे पूछा जाएगा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अपने बच्चों की तरबियत, अद्दिबू औलादकुम, अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी खतूत पे किया करो। जो अपने बच्चों को एक अदब की बात सिखाता है, एक मैनर अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पे भी सदक़े का सवाब इंसान को नसीब होता है। इसलिए ये हमारे आमाल अल्लाह किताब मुबीन में लिख रहे हैं। क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह की बारगाह के अंदर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत की सुबह तलक पैदा होने वाला बच्चा, ये सारे लोग अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए जाएंगे। 120 सफ़ें बनेंगी, जिनमें से 40 सफ़ें बाकी सारी उम्मतों की होंगी और 80 सफ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की होंगी सल्लल्लाहु। ये आपका एजाज़ है। तो अल्लाह की बारगाह के अंदर जब सारे लोग पेश होंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर वहाँ पे इंसान को इंसान का नामा आमाल दिया जाएगा। इंसान के आमाल जिस किताब मुबीन में दर्ज हैं वो पेश किया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा, पढ़िए किताबक, अपनी किताब, अपना नविश्ता, अपना रजिस्टर, अपने आमाल को पढ़ लो। आज तुमसे ज़्यादा इस किताब को कोई बेहतर अंदाज से परखने वाला नहीं है। ये क़यामत वाले दिन कहा जाएगा। और जब वो नामे आमाल पेश किया जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो खुशी खुशी नामे आमाल को अपने दाएं हाथ में लेके, ये जिसका ज़िक्र सूरह यासीन की एक आया मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। तुम जो कर रहे हो हम लिख रहे हैं। तो क़यामत वाले दिन जिनको नामे अमाल दाएं हाथ में नसीब होगा, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, हमारे वालिदैन को नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे अहलो अयाल को नसीब फरमा दे, हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह ये मुकाम अरफ़ा व आला नसीब फरमा दे। तो जब नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो फिर कहेगा हाउ मुक़रऊ किताबिया, लोगों ये देखो मेरा रिज़ल्ट कार्ड कैसा बेहतरीन आया, ये देखो अल्लाह ने मेरे साथ कितनी रहमत फरमाई, क्योंकि मुझे यकीन था मैंने एक दिन अपने अल्लाह की बारगाह में जाके ज़िंदगी की इंसानों का हिसाब देना है। इसके अपोजिट वो लोग कि जिन्होंने अपनी मनमानियों में ज़िंदगी के ये कीमती लम्हात को ज़ाया और बर्बाद कर दिया। क़यामत का दिन होगा जब बाएं हाथ में पीछे की तरफ से नामा अमाल पकड़ाया जाएगा तो उस वक्त कहेगा हाय मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए बर्बादी, हाय मेरे लिए हसरत ही हसरत है। माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है जिसने मेरी ज़िंदगी का ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा है ना बड़ा छोड़ा है। अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात को सोच समझ के बसर कीजिए। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाके जवाब देना है। कहेगा कुछ गुनाह ऐसे थे जो दुनिया से छुप के किए। सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नो इंस, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते हो, अपनी मनमानी करना चाहते हो, तो फिर ज़मीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल जाओ, जहाँ पे अल्लाह की खुदाई की हदें ना हो। लेकिन जहाँ पे भी जाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहीं पे पाओगे। अब क़यामत का दिन है, कहेगा माली हाज़ल किताब, ये किताब कैसी है जिसने ना मेरा कोई छोटा जुर्म छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा। हम जो आगे भेज रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो पीछे छोड़ के जाएंगे उसकी भी गवाही बन जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जवाब देना होगा। आखिरी बात जामे तिरमिज़ी की जो रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम का बेटा अपने कदम से कदम नहीं उठा सकेगा हत्ता कि अल्लाह के 5 सवालों के जवाब न दे दे। अन उमरिही, इसको इसकी उम्र के मुतालिक पूछा जाएगा। फीमा अफना, अपनी उम्र को कहाँ गुजार किया।
آج یہ فکر پیدا کریں کہیں ہم اپنی عمر کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ وَأَن شَبَابِهِ بالخصوص نیو جنریشن، میرے جو نوجوان بھائی بیٹے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے اپنا موازنہ کیجئے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ جوانی مستانی ہوتی ہے، لیکن اپنی جوانی کو ایسے جوانوں کی جوانی میں ڈھال دیجئے جن کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مسرور رکھتا ہے، مشغول اور مصروف رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس مسجد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کی صفائی ستھرائی میں، اس کو آباد کرنے میں اور اس کے اندر نمازیں پڑھنے میں، لوگوں کو ترغیب دینے میں، بالخصوص نوجوانوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے قیامت والے دن پوچھا جائے گا این ابلہ، اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے؟ مال کے متعلق پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور 5واں سوال پوچھا جائے گا جس مسئلے کا پہلے علم نہیں تھا جب علم ہو گیا اس پہ کس حد تک عمل کیا تھا۔ حضرات، یہ چند میری گزارشات تھیں جو آج اس مسجد کا دوسرا خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق سے آپ کے پیش خدمت کی گئی ہیں۔ اپنے کردار کو ایسا بنائیں، ہم اپنے کل کے لیے تیاری بھی کریں اور اپنے پیچھے اچھے نقوش بھی چھوڑ کے جائیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو کا سبب ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا کردار اسلامی تعلیمات کے عین موافق بنا دیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیں ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیں، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں، اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما کے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔